ماڈل ٹاؤن کچہری کے ریکارڈ روم میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا۔ آگ لگنے سے 2 کمروں میں موجود ریکارڈ جل کر خاکستر ہو گیا۔ ریسکیو اہلکار آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ جمال الدین جمالی وہیں پر موجود ہیں اور اب کی صورتحال انہی سے جان لیں گے۔ جمال الدین جمالی بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے، آگ کو بجھا دیا گیا ہے؟ ماڈل ٹاؤن کچہری کے ریکارڈ روم میں آگ لگی تھی جس کو اب ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے بڑی جدوجہد کے بعد قابو اس پہ پا لیا ہے اور آگ کو بجھا دیا گیا ہے۔ کولنگ کا عمل جو ہے وہ بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس وقت جو ہے جو صورتحال ہے، جو پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کے جو کرائم سین یونٹ ہے اس کے اہلکار آئے ہوئے ہیں اور وہ اس میں سے جو آگ جو ریکارڈ جلا ہے اس کے نمونے حاصل کر رہے ہیں، جبکہ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ امجد اقبال رانجھا اور MIT کے رکن جو ہے وہ بھی ماڈل ٹاؤن کچہری پہنچے۔ انہوں نے آگ سے ہونے والے نقصان کا جائزہ لیا عدالتی اہلکاروں سے اور جو ریسکیو 1122 کا عملہ ہے ان سے معلومات لی کہ کس طرح انہوں نے آگ کو بجھایا اور آگ لگنے سے متعلق عدالتی عملے سے انہوں نے معلومات لی کہ کس طرح ان کو پتہ چلا کہ آگ لگی ہے، کیسے اطلاع دی گئی اور اس میں یہ آگ کیسے اتنی پھیل گئی۔ میں بتاتا چلوں کہ ریکارڈ روم کے 2 کمروں میں ریکارڈ جو ہے مختلف مقدمات کے ہزاروں جو کیسز تھے ان کی فائل تھی 2 کمروں میں اور تمام فائلز جل گئی ہیں، ریکارڈ ختم ہو گیا ہے۔ اہم مقدمات تھے، زیادہ تر فوجداری کے مقدمات تھے جن میں مرڈر کے کیسز بھی تھے، ڈکیتی اور چوری کے مقدمات بھی تھے اور دیگر سنگین نوعیت کے مقدمات بھی تھے اور یہ 2 کمروں کے اندر جو ہے ریکس بنا کر اس میں یہ ریکارڈ جو ہے وہ بھرا ہوا تھا۔ آگ لگی، شارٹ کٹ ہوا یا پھر کسی نے جو ہے سگریٹ پھینکا جلتا ہوا یا ماچس سے آگ لگائی، کیا اسباب تھے، اس حوالے سے اب تحقیقات ہوں گی۔ پولیس موجود ہے اور جو پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی ہے اس کے اہلکار بھی موجود ہیں۔ آگ لگنے کی جو اسباب ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہ آگ جو ہے جب لگی تو اتنی شدید تھی کہ قابو اس پہ نہیں پایا گیا انٹل کہ اس نے اپنا کام کر دیا اور تمام فائلوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ہزاروں مقدمات کی فائلیں جو ہے اس آگ کی نظر ہو گئی ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کچہری ایک بڑی کچہری ہے، اس میں شہر کے مختلف اہم تھانے جو ہیں ان کے مقدمات آتے ہیں، جس میں ہر قسم کے جو مقدمات ہیں ان کا یہ ریکارڈ تھا جو جل گیا ہے۔ ایسے مقدمات بھی تھے جن میں بہت سارے ملزمان اشتہاری تھے اور ان کے اشتہاری اور مفرور ہونے کی وجہ سے ایسا ریکارڈ بھی تھا جو داخل دفتر رکھا ہوا تھا اور دیگر ٹرائل جو کیسز کے ہو رہے تھے جن کے فیصلے ہوئے تھے ان کا ریکارڈ بھی تھا، وہ تمام ریکارڈ جل گیا ہے۔ اس سے بڑا عدالتی نقصان ہوا ہے اور اس حوالے سے تحقیقات ہونی بھی چاہیے۔ اور جو ادھر ہماری بات ہوئی ریسکیو 1122، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جمال الدین جمالی تھی، تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ آن لائن بیٹنگ ایپس کی پروموشن اور سوشل میڈیا انفلوئنسز کی طلبی۔ NCC نے رجب برگ سمیت 5 یوٹیوبرز کو ایک بار پھر سے طلب کر لیا ہے۔ NCC کی جانب سے یوٹیوبرز کو دوبارہ طلبی کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ یوٹیوبر میں اقرا کنول، انس علی، حسنین شاہ، ارم محمود شامل ہیں۔ اس حوالے سے آگاہ کریں گے عرفان ملک ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عرفان ملک۔ بالکل، آپ کو بتائیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے آن لائن بیٹنگ ایپس کے خلاف جو اس کو پروموٹ کرتے تھے ان کے خلاف شکنجہ سخت کیا گیا ہے اور ایسے یوٹیوبرز جو آن لائن بیٹنگ ایپس کی پروموشن کر رہے تھے ان کو طلب کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 2 یوٹیوبرز آلریڈی گرفتار ہیں، جس میں ڈکی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مدثر حسین ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ لیکن اب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے 5 یوٹیوبرز ان کو دوبارہ سے طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ پہلے ان کو بلایا گیا تھا 9 ستمبر کو، لیکن یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے آفس میں پیش نہ ہوئے، جس کے بعد ان کو دوبارہ طلبی کے نوٹس جاری کرتے ہوئے 15 ستمبر کو آفس میں طلب کیا گیا ہے۔ اور اس نوٹیفکیشن کے اندر جو نوٹس دیا گیا ہے اس کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر وہ نہیں آتے تو یک طرفہ ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ عرفان ملک آپ کا۔ پنجاب میں غیر ڈکلیئر شدہ گندم کے ذخائر کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ پنجاب کی فیڈ ملز کے پاس 1,24,000 میٹرک ٹن غیر ڈکلیئر شدہ گندم ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پنجاب میں فیڈ ملز کے پاس موجود غیر ڈکلیئر شدہ گندم کے بڑے ذخائر کا انکشاف ہوا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق صوبے بھر میں فیڈ ملز نے تقریباً
24,000 मेट्रिक टन गंदम छुपा रखी है, जो हुकूमती रिकॉर्ड में जाहिर नहीं की गई। सबसे ज्यादा ज़खायर ननकाना साहब में 25,193 मेट्रिक टन, ओकाड़ा में 14,387 मेट्रिक टन, मुल्तान में 11,665 मेट्रिक टन और लाहौर में 11,385 मेट्रिक टन पाए गए हैं, जबकि रहीमिया खान में 7,000 से ज्यादा मेट्रिक टन गंदम पोशीदा मिली। इससे कबल IB स्पेशल ब्रांच और FIA भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर अपनी रिपोर्ट्स हुकूमत को पेश कर चुके हैं। नाज़रीन, आटे की कीमतों में तेज़ी से इजाफा होने लगा है और प्राइवेट कंपनियों ने 3 हफ्तों में 5 किलो आटे का थैला 250 रुपए तक महंगा कर दिया। कंपनियां 5 किलोग्राम का थैला 800 से 850 तक फरोख्त कर रही हैं। चीनी का बहरान भी नहीं टल पा रहा। किराना दुकानों पर चीनी की बदतरीन किल्लत का सामना है। शहजाद खान अब्दाली सूरत हाल पर आगाह करेंगे। जी शहजाद। लाहौर के अंदर निजी पैकेजिंग वाले आटे की जो कीमतें हैं वो जो की तूं हैं और इस कंपनी की जानब से कीमतों में कोई कमी नहीं की गई। गुज़श्ता 3 हफ्तों से मुसलसल कीमतें बढ़ाई गई थी। 5 किलोग्राम के थैले पर 160 रुपये हाल ही में बढ़ाए गए हैं और इस आटे की जो कीमत है वो 5 किलोग्राम के थैले की 800 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। और इस हवाले से सार्फिन ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। पंजाब हुकूमत इस मामले का नोटिस ले और दूसरी जानब जो चीनी का बहरान है वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। किराने की दुकानों पर और जनरल स्टोरों पर शहर के अंदर चीनी दस्तयाब नहीं है। चीनी सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोरों के पास मौजूद है, जहाँ से जो सब महदूद तादाद में सार्फिन जो हैं वो चीनी ख़रीदते हैं। लेकिन शहर लाहौर की आबादी के तनासब से जो चीनी है वो उसकी तरसील को यकीनी नहीं बनाया जा रहा और किराना फरोशों के पास चीनी मौजूद नहीं है। इस हवाले से किराना फरोश ये कहते हैं कि होल सेलर्स ये चीनी जो है वो कमर्शल सार्फिन को देकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं और इसी वजह से जो चीनी है वो घरेलू सार्फिन तक नहीं पहुंच पा रही। अलबत्ता ब्लैक में होल सेलर्स जो हैं वो चीनी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 186-187 पर किराना फरोश ये कहते हैं वो चीनी खरीदने। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। सर्कुलर रोड अकबरी मंडी के इलाके में तजावुज़ात की भरमार है। जगह जगह कपड़ों के ठेलों समेत गैर कानूनी पार्किंग भी कायम की गई है। अफसरान तजावुज़ात माफिया की पुष्ट पनाही करते रहे। राहगीरों की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। राहगीरों का आला हुकाम से तजावुज़ात हटाने का मुतालिबा भी सामने आ रहा है। इस हवाले से बात कर रहेंगे अबू बकर शेख हमारे साथ हैं। जी अबू बकर, आगाह कीजिएगा। ज़िलाई इंतज़ामिया लाहौर शहर से तजावुज़ात को ख़त्म करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। शहर की अहम तरीन जो मेन शाहराह है, बाज़ार है, ये मेन सर्कुलर रोड अकबरी मंडी समेत मोहलिका काफ़ी जो जगह हैं यहाँ पे जगह जगह तजावुज़ात देखने में नज़र आ रही हैं। चाहे कोई कपड़ों की दुकान हो या रेडियों पे लदा हुआ ये माल हो, यहाँ पे जगह जगह आपको रेडियाँ उसके साथ साथ जो गैर कानूनी पार्किंग है ये भी देखने में नज़र आ रही है। आसपास के जो शहरी हैं, राहगीर हैं, इन्होंने मुतालबा किया है कि इनकी जानिब से आध से ज़ायद जो सड़क है ये इन्होंने मल रखी है, जिसके बायस जो ट्रैफिक की रवानी है ये भी सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ पे जो भी तजावुज़ात माफिया है इनकी जानिब से कमो बेश सड़क के ऊपर 5 से 7 फुट के फासले पे इन्होंने जगह जगह रेडियाँ लगा रखी हैं, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के कपड़े हैं, फलों के स्टॉल्स हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो जॉगर्स और दीगर जो बच्चों के मलबूसात हैं ये भी सड़क बीच छाबड़ी और जो रेडियाँ हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं। राहगीरों ने आला जो हुकाम हैं, मुतलका महकमे हैं, ज़िला इंतज़ामिया के जो आला अफसरान हैं उनसे मुतालबा किया है कि इनको कोई अल्टरनेट जगह प्रोवाइड की जाए ताकि इनका भी रोज़गार ख़त्म ना हो, लेकिन उसके साथ साथ सड़क को मुकम्मल तौर पे कुशादा किया जाए ताकि इनको आने और जाने में किसी किस्म की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अबू बकर शेख, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत की जानिब से 57,000 घरों की तामीर का ये मंसूबा है। महकमे हाउसिंग के ज़ेरे इंतज़ाम म्यारी सस्ती रिहाइश गाहें तामीर की जाएंगी। सूबे भर के 21 अजला में सरकारी ज़मीनों पर रिहाइश गाहों की तामीर होगी। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे, दुरे ने आपसे बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी हाउसिंग रूरल व्हीकल की जानिब से इससे आज एक अहम इजलास लिया गया जिसमें फैसला किया गया है कि 57,000 घरों की तामीर होगी और इसमें महकमा हाउसिंग पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम म्यारी सस्ती रिहाइश गाहें बनाई जाएंगी। सुबह भर में 21 अजला में ये इनका
सरकारी ज़मीनों पर इंतखाब किया जाएगा। पहले मरहले में तकरीबन 20,000 रिहाइश गाहों की तमीर का फार्मूला तैयार किया जा रहा है। सूबा भर में 41 साइट का इंतखाब कर लिया गया है। रिहाइश गाहें आसान इक़साद पर मुस्तहिक अफराद को दी जाएंगी। 5 साल में मनसूबा हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। रिहाइश गाहें वर्ल्ड बैंक और प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से तामीर होंगी और फाइनेंशियल फंडिंग भी उनकी जानिब से दी जाएगी। रिहायशियों को ज़रूरत ज़िंदगी के मुताबिक तमाम सहूलियात की आसानी फराहम किया जाएगा। माजी के तजुर्बात से इस्तेफादा करते हुए बेहतरीन हिकमत अमली के तहत मनसूबा तैयार किया गया है, ऐसा कहना है बहता हाउसिंग की जानिब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नायाब थे क्या कर रहे थे। PDMA ने सैलाब मुतासरीन के लिए 1.5 अरब के इजाफी फंड्स जारी कर दिए हैं। फंड्स मुतासर इलाकों में खाने पीने, अद्वियात और दीगर सहूलियात के लिए इस्तेमाल होंगे। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ अली रामे हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, PDMA के हुकाम के मुताबिक अब मजीद बजट जो है वो रिलीज कर दिया गया है सैलाब से मुतासरा अजला में, और वहाँ पे क्योंकि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी, और इसके लिए मजीद बजट की डिमांड जो है वो अजला की तरफ से की गई थी, और उस पर PDMA के हुकाम ने 1.5 अरब रुपए का बजट जो है वो मजीद जारी किया। इससे कबल 900 मिली यानी कि 90 करोड़ रुपए का बजट जो है वो सैलाब के इब्तदाई दिनों के अंदर जो है वो जारी किया गया था इजला को, लेकिन अब मुतासरीन की तादाद क्योंकि बढ़ती जा रही है और वहाँ पर खाने पीने की अशिया और दीगर जो सहूलियात दी जा रही हैं मुतासरीन को, उस हवाले से अब PDMA ने मजीद बजट जो है वो जारी किया। तो अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन और खाने पीने के सामान के अलावा दीगर सहूलियात के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट है वो PDMA मुतलका अजला को जारी कर चुका है। जी ठीक है अली रामे। दूसरी जानिब चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने इजलास की सदारत की है। इजलास का अहवाल बताइएगा। PND बोर्ड में एक अहम इजलास जो है वो सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का हुआ, जिसमें इजलास में तरक्याती मनसूबाजात की मंजूरी के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ स्कीमें पेश की गई। तो इस पर PND बोर्ड की तरफ से 9 अरब रुपए का मजमूई फंड जो है वो अप्रूव किया गया, जिसमें टैक्टा में तामीराती और मेहमान नवाजी लैब्स की तोसीक के लिए 2 अरब, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी हाउसिंग की तमीर के लिए 97 करोड़, PPIC 3 की अपग्रेडेशन और इसलाह के लिए 5 अरब 81 करोड़ की मंजूरी जो है वो दी गई। जबकि पंजाब असम्बली में मेंबरान असम्बली के लिए रिसोर्स सेंटर और ट्रेनिंग सिस्टम और सिटीजन सेंटर लीगल इंफॉर्मेशन स्टेशन के लिए पोजीशन जो पेपर बनाया गया उसकी भी मंजूरी जो है वो दी गई, और 19 अजला में स्मार्ट से सिटीज फेज 2 के पोजीशन पेपर की जो है वो मंजूरी दी गई। जी पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ज़राई इनकम टैक्स का तखमीना और शरह जारी कर दी। ज़राई इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 मुकर्रर की गई। इनकम टैक्स रिटर्न की नई शरह 1 जुलाई 2025 से मौसर होगी। 12 एकड़ तक ज़राई ज़मीन पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। 12 से 25 एकड़ तक फी एकड़ 300 रुपये टैक्स वसूल किया जाएगा। 25 से 50 एकड़ तक फी एकड़ 400 रुपये टैक्स वसूल होगा। 50 एकड़ से जायद पर फी एकड़ 500 रुपये टैक्स वसूल किया जाएगा। पुख्ता बागात पर फी एकड़ 600 रुपये टैक्स होगा। गैर सैराब बागात पर 300 रुपये टैक्स होगा। सालाना 4 लाख रुपए तक ज़राई आमदनी पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। 4 से 8 लाख तक आमदनी पर 1000 रुपये फी टैक्स है, जबकि 8 से 12 लाख रुपए तक आमदनी पर 2000 रुपये फिक्स टैक्स वसूल किया जाएगा। 12 से 24 लाख आमदन पर 12 लाख से जायद रकम का 5% टैक्स लागू होगा, और 24 से 48 लाख आमदन पर 60,000 के अलावा जायद रकम पर 10% भी टैक्स आयद है। 48 लाख से जायद आमदन पर 3 लाख के अलावा जायद रकम पर 15% टैक्स आयद होगा। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ज़राई इनकम टैक्स का तखमीना और शरह जारी की है। अभी आपको आगाह करें कि फाइनेंस एक्ट 2025 पंजाब सेल्स टैक्स ऑनलाइन सर्विसेज 2012 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सेल्स टैक्स के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल कर लेंगे, मलिक अशरफ से बताइएगा। एक्ट 2025 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और अदालत ने इस दरख्वास्त पे पंजाब हुकूमत रेवेन्यू अथॉरिटी समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। बेंच में जस्टिस हसन नवाज मखदूम और जस्टिस खालिद इसहाक शामिल थे। दरख्वास्त गुजारों की जानब से बैरिस्टर अब्दुल्ला हारून पेश हुए हैं। इसी वाले से बात करते हैं अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला बताएं कि क्या कहेंगे, क्या चैलेंज किया? जी, हमने बेसिकली पंजाब फाइनेंस एक्ट 2025 जिसके तहत अमेंडमेंट हुई है पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट में 2012 के अंदर, उसमें अमेंडमेंट ये हुई है कि अब ये इन्होंने अमेंडमेंट की है कि हम रेंटल इनकम पे भी से टैक्स ऑन सर्विसेज लेंगे 16%। उससे पहले ये वाला टैक्स कोई नहीं था कि जो रेंट दे रहा है वो 16% टैक्स ऑन सर्विसेज पंजाब हुकूमत को देगा, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को देगा।
तो इसको हमने चैलेंज किया है कि जो खाली रेंट करना प्रॉपर्टी को कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो इस पे कोई टैक्स ऑन सर्विसेज लग नहीं सकता। और ये पहले सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो चुका है, जब वहाँ अमेंडमेंट आई थी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट से भी अपहेल्ड हो गया है। अब इन्होंने पंजाब में ये अमेंडमेंट लेके आए हैं कि पंजाब में हम रेंटल ऑफ द प्रॉपर्टी पे उसकी इनकम के ऊपर हम लोग टैक्स ऑन सर्विसेज लेंगे। ऑल्दो एफबीआर पहले ही इनकम टैक्स ले रहा है ऑन रेंटल इनकम, लेकिन ये डबल टैक्सेशन करके यहाँ टैक्स ऑन सर्विसेज भी लेना चाह रहे हैं इस अमेंडमेंट के तहत। तभी हमने इसको चैलेंज किया है हाई कोर्ट में, मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है और जो सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है। बहुत शुक्रिया। ये थे दरख्वास्त गुजारों के वकील जिस पे अदालत ने नोटिस जारी किया है और आइंदा समात पे जवाब। बहुत शुक्रिया माइक अशरफ। इंस्पेक्टर के अहदे पर तरक्की पाने वालों को मुख्तलिफ अजला अलॉट कर दिए गए। पंजाब पुलिस के 343 इंस्पेक्टर्स के मुख्तलिफ अजला में तबादले किए गए और मुरासला जारी कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद 2 मुख्तलिफ अजला से 25 इंस्पेक्टर्स को आरपीओ ऑफिस गुजरांवाला भिजवाया गया। मुख्तलिफ अजला से स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर 11 इंस्पेक्टर्स को भिजवाया गया। मरासले में लिखा गया लाहौर के मुख्तलिफ विंग से 98 इंस्पेक्टर्स को सीसीपीओ ऑफिस अलॉट किया गया है। अली साही हमारे साथ इन डिटेल्स बता रहे हैं। जी अली साही। बिल्कुल, गुज़श्ता माह पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तरक्कियाँ दी गई थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक के अहदे पर 400 के करीब अफसरान को प्रमोट किया गया था। इसी हवाले से आईजी पंजाब की जानब से 343 इंस्पेक्टर्स को मुख्तलिफ अजला अलॉट कर दिए गए हैं, जिसमें लाहौर के 98 इंस्पेक्टर्स को 4 इजलास में मुख्तलिफ यूनिट्स में भिजवाया गया है। रावलपिंडी से गुजरात 2 इंस्पेक्टर्स को भिजवाया गया है। इसी तरह गुजरांवाला से 14, फैसलाबाद से भी मजीद इंस्पेक्टर को दीगर रेंजेस में भिजवाया गया है। आईजी पंजाब का कहना है कि फौरी तौर पर जिन इंस्पेक्टर्स के तबादले मुख्तलिफ रेंजेस और अजला में किए गए हैं वहाँ पर रिपोर्ट करें, अदरवाइज उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा अली साही, दूसरी जानिब आईजी जेल की हिदायत पर कैंप जेल में मुलाजमीन के लिए लाइब्रेरी कायम कर दी गई है। क्या कहना है इस हवाले से सुपरिटेंडेंट जेल का? जी बिल्कुल, आईजी जेल खानाजात मियां फारूक नज़ीर के हुक्म पर कैंप जेल में मुलाजमीन के लिए लाइब्रेरी कायम कर दी गई है, जिसका इफ्तिताह डीआईजी लाहौर रीजन मोहसिन रफीक और मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह की जानब से किया गया है। इसमें 3 रैक्स जो हैं वो किताबों के रखे गए हैं। सुपरिटेंडेंट ज़हीर विर्क का कहना है कि आने वाले दिनों में कुतब की तादाद जो है वो बढ़ाई जाएगी। इससे पहले कैदियों के लिए तमाम बैरक्स में जो है वो लाइब्रेरी और किताबें रखी गई हैं, और अब जो है वो मुलाजमीन जब फारग होंगे और ड्यूटी से फ्री होंगे तो अपने औकात कार के को गुजारने के लिए लाइब्रेरी में कुतब भी नहीं कर सकेंगे। जी अभी आपको बताएं, थीम पार्क सोसाइटी मोहलनवाल मुलिका इलाकों में सैलाबी पानी जमा है। 2 हफ्ते कबल सोसाइटी का बंद टूटने से पानी सोसाइटी में दाखिल हो गया था। सोसाइटी में पानी के लेवल में कमी आने लगी। घर और दुकानें ताहाल ज़ेर-ए-आब हैं और सोसाइटी के 10,000 से ज़ायद रहायशी सैलाबी सूरत हाल से मुतासिर हो चुके हैं। उस्मान खादिम कम इस वक्त वहीं पर मौजूद है, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त थीम पार्क की सोसाइटी में मौजूद हूँ। 2 हफ्ते कबल बंद टूटने से दरिया रावी का पानी इस सोसाइटी में आया। सैकड़ों घर उस पानी के अंदर जो है वो डूब गए। अभी भी यहाँ पे 6 से 7 फुट तक पानी मौजूद है। सैकड़ों घर इस वक्त ज़ेर-ए-आब है। हमारे साथ यहाँ के मकीन भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या क्या नुकसान हुआ है और कितना टाइम लगेगा यहाँ से पानी खत्म? सर, कम से कम ये अभी 15 दिन तक हो गए, अभी तक तो पानी इधर से नहीं निकाला गया। जो मरियम साहब ने भेजे थे पानी निकालने वाले, वो हाथ के हाथ रख के ऊपर बैठे हुए हैं। अभी तक ना कोई इधर MP MN आया ना कोई आया। जो बच्चियों का यहाँ पे खाने पीने के लिए बिजली के हवाले से क्या सहूलियात है? सर, बिजली वगैरह तो तब से जब से ये सैलाब आया ना तब से बंद पड़ी हुई है। वैसे ही लोग ज़्यादातर जो कैंपों में बैठे हुए हैं, इधर के जो हालात हैं ज़्यादातर इधर चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, ना तो लिहाजा इधर कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे अक्ब में भी सैकड़ों घर हैं जो ज़ेर-ए-आब आए हुए हैं। वहाँ पे लोग अपनी मदद आप के तहत कश्ती चला के लोगों को लेके आ रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। ज़्यादातर घर खाली कर लिए गए हैं और लोग खुले आसमान तले ऊंचे मकामात के ऊपर चारपाइयाँ कुर्सियाँ रख के अपने दिन और रात गुजारने पर मजबूर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अब बात कर लेंगे शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। शहर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। आसमान पर कभी बादलों का बसेरा तो कभी सूरज का राज है। मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। आज कैसा मौसम है, आने वाले दिनों में क्या पेश गोई है, जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा।
मौसम की बात करी जाए तो इस वक्त आसमान पर बादलों का बसेरा है, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सुबह से ही सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली भी देखने में नजर आ रही है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 39 और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 60% तक है, जबकि शहर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। इस वक्त आसमान पर बादल मौजूद है, इसलिए हवाओं की शिद्दत जो है वो ठंडी महसूस की जा रही है। लेकिन जैसे ही फिर से सूरज जलवागर होगा तो हब्स और घुटन की जो कैफियत है वो फिर से मजीद बढ़ती हुई महसूस की जा सकेगी। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली इसी तरह से जारी रहेगी, जबकि आज शहर लाहौर में बारिश के कोई भी इम्कानात नहीं है। आइंदा आने वाले चंद रोज़ तक भी शहर में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। अलबत्ता आइंदा चंद रोज़ तक शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी। शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा और ऐसे में शहरियों को जो है वो माहिरीन की जानिब से धूप से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है। माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि शहरी जो हैं वो धूप में निकलते वक्त जो है वो खास एहतियात बरतें, अपने सरों को ढांप कर रखें। सन ग्लासेस का इस्तेमाल जो है वो गर्मी और धूप से बचने के लिए लाजमी करें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी के साथ साथ ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल को भी यकीनी बनाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ समरा थी, अपडेट कर रही थी।